आज हम स्टडी करेंगे हेच एंड स्लेक साइकिल, जिसे हम कहते हैं C4 साइकिल। वाई वी कॉल्ड C4 साइकिल? because first stable molecule consists of 4 carbon, hence we use the term C4 cycle, carbon 4 cycle. It's also called dicarboxylic acid because जो एक मॉलिक्यूल जो स्टेबल मॉलिक्यूल बनेगा उसमें 2 कार्बो ऑक्सिलिक एसिड होंगे, COOH2 होंगे, इसीलिए कहेंगे हम डाई कार्बो ऑक्सिलिक एसिड। इट्स आल्सो कॉल्ड कोऑपरेटिव फोटोसिंथेसिस। कोऑपरेटिव फोटोसिंथेसिस, व्हाई वी कॉल्ड कोऑपरेटिव फोटोसिंथेसिस? बिकॉज जो शुगर बनेगी विद द कोऑपरेशन ऑफ 2 टाइप ऑफ सेल्स। वो आगे हम स्टडी करेंगे। 2 टाइप ऑफ सेल्स कौन से हैं? लेट्स स्टडी। Korshak, Holt and Bohr in 1965 observed in the case of sugarcane, Saccharum officinarum. What they observed after the fixation of carbon dioxide molecule is consisting upon 4 carbon instead of 3 carbon. जो मॉलिक्यूल बनेगा आफ्टर द फिक्सेशन के बाद उसमें कितने कार्बन होंगे? 4 कार्बन होंगे, 3 कार्बन नहीं होंगे। These scientists observe this in the case of sugarcane. Let's study the anatomy of leaf, because this anatomy of leaf in the case of C4 plants entirely different from the plants of C3. C4 plants, and when we study C4 plants, the presence of Cron's anatomy, इसमें हमें क्या मिलेगी? Cron's anatomy मिलेगी in their leaves. The presence of 2 layer of bundle sheath cells. There is a 2 layers of bundle sheath cells around the vascular bundles. Now vascular bundles हम किसे कहते हैं? Xylem और phloem के। आप देख सकते हैं this is a xylem और this is a phloem. Xylem and phloem collectively called vascular bundles. इस vascular bundles के अराउंड हमें क्या मिलेंगे? बंडल शीथ सेल्स मिलेंगे। बंडल शीथ सेल्स, दिस सेल्स आर प्रेजेंट अराउंड द वेस्कुलर बंडल्स, जाइलम एंड फिलोएम। उसके अलावा अनडिफ्रेंशिएटेड मेसोफिल सेल्स आप यहाँ देख सकते हैं, दीज आर द मेसोफिल सेल्स and presence of dimorphic chloroplast. Dimorphic means morphologically chloroplast is entirely different. When we study the cells of bundle sheath cells have large chloroplast. जो सेल्स हैं बंडल शीथ सेल्स के उसमें क्लोरोप्लास्ट लार्ज होंगे विद लेक ग्रेना, उनमें ग्रेना नहीं होंगे, एब्सेंस ऑफ ग्रेना एंड सेंट्रीपिटली अरेंज्ड. दे आर आल्सो कंटेन numerous starch grains. In contrast, when we study the chloroplast of mesophyll cells are smaller. Mesophyll cells are smaller than bundle sheath cells. Have normally developed grana होंगे जो normally developed होंगे, but lack the enzyme of C3 cycle. Obviously, enzyme which is participate in C3 cycle, Robesco, is absent in the case of mesophyll cells. Instead, they contain PAPase enzyme which catalyzes the carboxylation of PAP into oxaloacetic acid. This is a anatomy of C4 plant. This is upper epidermis which is present above the surface. We call this upper epidermis. Below the upper epidermis, we have found these are undifferentiated mesophyll cells. These are mesophyll cells. You can see here, these all are mesophyll cells, and obviously they have chloroplast. These chloroplast and xylem and phloem, vascular bundles, and cells of bundle sheath with special type of chloroplast, because chloroplast both cells have morphologically 2 different types of chloroplast. आप देख सकते हैं दिस इज एनाटॉमी. दिस एनाटॉमी इज कॉल्ड Cron's एनाटॉमी. इसे हम कहेंगे Cron's एनाटॉमी. लेट्स स्टडी C4 साइकिल, C4 पाथवे इन डिटेल. C4 cycle, C4 pathway.
These are the bundle sheath cells हैं और these are mesophyll cells. बंडल शीथ सेल, इसके ऊपर हमें मिलेंगे mesophyll cells. अब cooperative photosynthesis, because this reaction is with the help of cooperation of two type of cells, mesophyll cell and bundle sheath cell. Let's start. Carbon dioxide from the environment enter होगी through the stoma. स्टोमा माइक्रोस्कोपिक पोर होता है जिसके ज़रिए गैस एक्सचेंज होती है, मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड बाहर से सेल के अंदर आएगी. सेल के अंदर पहले ही प्रेजेंट है एक 3 कार्बन मॉलिक्यूल जिसे हम कहेंगे पेप, फास्फोइनोल पायरुवेट. फास्फोइनोल पायरुवेट, इट इज़ अ 3 कार्बन मॉलिक्यूल. इसकी हो जाएगी कार्बोक्सिलेशन. कार्बोक्सिलेशन किस तरह से होगी? कार्बोक्सिलेशन इसकी कार्बोक्सिलेशन होगी विद द हेल्प ऑफ ए एंजाइम, और एंजाइम को हम कहेंगे पेप केस. पेप केस एंजाइम के ज़रिए कार्बोक्सिलेशन होगी. कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स हो जाएगी पेप में, और जब कार्बन डाइऑक्साइड विद द हेल्प ऑफ पेप केस एंजाइम फिक्स होगी तो मॉलिक्यूल बनेगा 4 कार्बन. 4 कार्बन मॉलिक्यूल इज कॉल्ड ऑक्सैलोएसिटिक एसिड. अब ऑक्सैलोएसिटिक एसिड इट इज़ अ 4 कार्बन मॉलिक्यूल. कितने कार्बन है इसमें? 4 कार्बन है. दिस इज़ अ फर्स्ट स्टेबल मॉलिक्यूल. इट कंसिस्ट ऑफ 4 कार्बन, हेंस द साइकिल इज कॉल्ड C4 साइकिल, मीन्स कार्बन 4 साइकिल. अब ये जो कार्बन 4 कार्बन बनेगा, अब यहाँ पे NADPH+H कन्वर्ट हो जाएगी NAD में. जब ये होगा तो ऑक्सैलोएसिटिक एसिड 4 कार्बन मॉलिक्यूल अपनी कन्फर्मेशन चेंज करेगा, एंड दिस ऑक्सैलोएसिटिक एसिड कन्वर्टेड इनटू मेलेट और मैलिक एसिड, या मेलेट में या मैलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये भी 4 कार्बन मॉलिक्यूल है. नाउ मेलेट और मैलिक एसिड देन ट्रांसपोर्ट टुवर्ड्स द बंडल शीथ सेल फ्रॉम मेसोफिल सेल. अब ये जो मेलेट है ये आ जाएगा बंडल शीथ सेल में थ्रू द प्लाज्मोडेस्माटा. प्लाज्मोडेस्माटा, these are the regions which are present in between mesophyll and bundle sheath cell. इन्हें हम कहेंगे प्लाज्मोडेस्माटा. थ्रू द प्लाज्मोडेस्माटा मैलिक एसिड और मेलेट ट्रांसफर टुवर्ड्स द व्हाट? बंडल शीथ सेल्स. अब यहाँ पे जो मेलेट है 4 कार्बन मॉलिक्यूल है, इसकी होगी डीकार्बोक्सिलेशन. डीकार्बोक्सिलेशन मीन्स रिमूवल ऑफ कार्बन इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. अब इस मेलेट से जो कार्बन बाहर निकलेगा वो एंटर होगा इनटू C3 साइकिल. याद रखें यहाँ पे कि C3 साइकिल इट इज़ अ यूनिवर्सल पाथवे, यूनिवर्सल साइकिल फाउंड इन ऑल प्लांट्स. जो भी प्लांट्स हैं उनमें शुगर बनाने के लिए जो पाथवे यूज़ होता है उसे हम कहेंगे C3 साइकिल और C3 पाथवे. ये कार्बन डाइऑक्साइड एंटर हो जाएगा C3 साइकिल में, और ये जो मेलेट है 4 कार्बन मॉलिक्यूल, अब एक कार्बन तो रिमूव हो गया यहाँ पे. जब कार्बन रिमूव होगा तब NADP कन्वर्ट हो जाएगी NADPH+H में, और उसके बाद 3 कार्बन मॉलिक्यूल, रिमेनिंग 3 कार्बन मॉलिक्यूल इज पायरुवेट. पायरुवेट इट्स आल्सो कॉल्ड पायरुविक एसिड. एक कार्बन रिमूव हो गया इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जो कार्बन एंटर हो जाएगा C3 साइकिल में, और C3 साइकिल के ज़रिए शुगर बनेगी, और ये जो मेलेट है इट इज़ नाउ कन्वर्टेड इनटू पायरुवेट और पायरुविक एसिड. पायरुवेट या पायरुविक एसिड 3 कार्बन मॉलिक्यूल है. अब पायरुवेट ट्रांसपोर्ट हो जाएगी फिर मेसोफिल सेल में. फ्रॉम बंडल शीथ सेल इट ट्रांसपोर्ट्स टुवर्ड्स द व्हाट? मेसोफिल सेल. पायरुवेट 3 कार्बन मॉलिक्यूल. यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे ATP एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट कन्वर्टेड इनटू AMP एडेनोसाइन मोनोफॉस्फेट. यहाँ पे ATP यूज़ होगी और AMP में कन्वर्ट हो जाएगी, और पायरुवेट कन्वर्ट हो जाएगा पेप में, फास्फोइनोल पायरुवेट में.